Hello students, welcome to next lecture of determinants. In this lecture, I would be discussing with you people adjoint of a matrix, its properties, its related theorems, right? But for covering this topic, you must remember, or you can say you need to recollect the discussion of the last video lecture. In the last video lecture, I have covered with you people minors and cofactors of a matrix, right? So let's begin with, right now what I am going to cover is NCERT exercise 4.5. Let us consider that A is any square matrix. A is any square matrix of order n cross n, then adjoint of A, sometimes represented by this, is also a square matrix, but it would be formed by taking transpose of a matrix formed by the elements of cofactors, corresponding cofactors of the given matrix. Cofactors, I hope you remember. I've told you, if elements of a matrix capital A are represented by small aij, then their corresponding cofactors are represented by capital Aij. Now, what I'm saying over here, कि adjoint कैलकुलेट करके बताना है. आपने क्या करना है, मैट्रिक्स से हर एलिमेंट के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है. इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए हम एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं. सपोज मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, लेट्स से 3 4 5 1 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करता हूं. कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के कोफैक्टर्स, सो 1 1 पोजीशन कैसे था कोफैक्टर्स, रो और कॉलम को हाइड किया, जो बचा उसका डिटरमिनेंट यानी कि 1 ही रहा. ये होता था माइनर. माइनर के अगेंस्ट पोजीशन का साइन लगाना. आई होप यू रिमेंबर पोजीशन साइन. फर्स्ट element, that is first row first column, is always positive, then alternately sign varies. If it is positive, it has to be negative, next sign would be positive. Similarly, if I move from here positive to negative. Now minor 1 1 position का 1 है, अब उसका corresponding sign क्या था, positive. तो A11 is 1, first row second column. Minor row column को hide किया, it is 5 only. अब उसकी पोजीशन का साइन क्या है, नेगेटिव. देन A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर इज, रो कॉलम को हाइड किया, माइनर इज 4, पोजीशन का साइन चेक करिए, इफ इट इज पॉजिटिव इट हैज टू बी नेगेटिव. देन 2 2 पोजीशन, 2 2 पोजीशन दिस, माइनर कम्स आउट टू बी 3. इसके अगेंस्ट इसकी पोजीशन का साइन चेक करिए, इसकी पोजीशन का साइन क्या है, पॉजिटिव. सो दीज आर द कोफैक्टर्स, corresponding cofactors, right? Now what is adjoint of A? Adjoint of A कैसे आएगा? What you need to create? First you need to create a matrix of the cofactors. ये A मैट्रिक्स के जो हमने कोफैक्टर्स बनाए थे, इनका मैट्रिक्स क्रिएट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, यानी कि 1 -5 -4 एंड 3. अब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है. इसके ट्रांसपोज से जो रिजल्ट आएगा, दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग adjoint of it. अब जरा इसको फाइनल आंसर मार्क करते हैं. फर्स्ट रो, आई होप यू रिमेंबर ट्रांसपोज कैसे होता था, रो इंटरचेंज विद कॉलम्स. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम. सो दिस इज adjoint of it, right? So I hope now it is clear. Adjoint of A is what? Matrix formed by the cofactors of the corresponding elements and then taking its transpose. कोफैक्टर के एलिमेंट्स से मैट्रिक्स बनाओ, कोफैक्टर्स को यूज करके मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज लो, जो ट्रांसपोज लेके आएगा दैट वुड बी adjoint of A.
नाउ एज यू कैन सी मैंने एग्जांपल लिया था ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का और मैंने उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करके बताया. For order 2 cross 2, for order 2 cross 2, we have a shortcut for calculating adjoint of A. Now, what is the shortcut? Please see to this. In this particular shortcut, we interchange the diagonal elements, and reverse the sign of non-diagonal elements. 4, over here is a positive, it has to be negative. 5 again over here positive, it has to be negative. So now the matrix form would be adjoint of A. आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. I hope shortcut समझ में आ गया. What is the shortcut? Interchange the diagonal elements, reverse the sign of non-diagonal elements. The simple rule है, right? Once you do it, you get the adjoint of A. I have discussed adjoint of A in this particular example of order 2 cross 2. I'm going to take another example for calculating adjoint of A with an matrix of order 3 cross 3. चलिए देखते हैं. Suppose this time I do have a matrix over here 3, 2, 1, 4, 6, 8, 5, 3, minus 2. ये मैट्रिक्स है, राइट? क्या कैलकुलेट करना है? एडजॉइंट ऑफ ए. तो पहले क्या कैलकुलेट करना था? सोचिए इसमें पहले क्या कैलकुलेट किए थे? कोफैक्टर्स. तो कैलकुलेट करते हैं कोफैक्टर. कोफैक्टर कैसे निकलते थे? माइनर कैलकुलेट कर रहा था, फिर मैं उनके पोजीशन के साइन मार्क करता था. सो सेम ओवर हियर 1 पोजीशन का माइनर रो और कॉलम को हाइड किया, स्क्वायर मैट्रिक्स बचा, उसका डिटर्मिनेंट -12 -24 -12 देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का साइन. ये पॉजिटिव होता है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, कॉरस्पॉन्डिंग साइन चेंज होगी. ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव. इफ इट इज नेगेटिव इट हैज टू बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बाद यहां पे आएगा नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव. ओके, कंप्लीट करता हूं. 1 पोजीशन का साइन पॉजिटिव है तो ये एज इट इज रहेगा. तो इट मींस इट कम्स आउट टू बी कितना आया ये? इट इज -36. Then 1 2 position. First row, second column, row and column को हाइड किया, -8 -40. Then position sign negative. It is -48 with negative again makes +48. Then 1 3. Row and column are hidden. 12 -30. 12 -30. Now position sign is positive, so let it be, comes out to be -18. Right? फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूं. सेकेंड रो एंड कॉलम को हाइड किया, -4 -3. -4 -3 position sign is negative, it comes out to be +7. 2 2. Row and column are hidden. -6 -5. -6 -5 position sign is positive, so comes out to be -11. 2 3 position. Second row, third column, 9 -10 is -1. 2 3 position sign is negative, so it comes out to be +1. Third row, first column. Third row, this is third row, first column. 16 -6. 16 -6 is 10. Now position sign is positive, so it comes out to be +10. 3 2. Now 3 2. Row column को हाइड किया, 24 -4. 24 -4 comes out to be 20. Position sign negative, so it is -20. Finally 3 3 position. 3 3 position, row column को हाइड किया, 18 -8 makes 10. Position sign is positive, so it is +10 only. So corresponding cofactors कैलकुलेट कर लिए. मुझे क्या कैलकुलेट करना था? अल्टीमेटली adjoint of A.
adjoint of A, what I have told you, आप पहले मैट्रिक्स क्रिएट करिए कोफैक्टर से मैट्रिक्स क्रिएट किया -36 48 -18, then it is 7 -11 1 10 -20 and 10. अब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, राइट? तो इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं, सो इट कम्स आउट टू बी फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, second row will become second column, and third row will become third column. So this is adjoint of A. As I told you, we have a shortcut method for calculating adjoint of A for order 2 cross 2. What was that? Interchange the diagonal, reverse the sign of non-diagonal. But in the case of order 3, we don't have any shortcut. We have to go with this process only, right? आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्रिएट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, देन यू गेट adjoint of A. I hope now it is pretty much clear कि how to calculate adjoint of A. So अब जो ये मैंने डिस्कस किया बच्चे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे आपके पास. You will get the question like कि जैसे मैंने करवाया, एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, you need to calculate adjoint of A. Similarly, next matrix create दे दिया जाएगा ऑर्डर 3 का, again you need to calculate adjoint of A. So same manner जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, right? अब इसके आगे चलते हैं. अब इसके आगे क्या है हमारे पास? Now इस टॉपिक में हमारे पास जो आगे आते हैं, that is few results, few theorems. अब जरा उन पे काम करते हैं. First theorem says that A into adjoint A into A equals to determinant A into I. This is the first theorem with the condition A is a square matrix of order n cross n. So A एक square matrix है of order n cross n, then in that case A into adjoint A into A equals to determinant A into I. ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. देखिए ये रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ये वाले रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस है कि इनके बेसिस पे यू गेट ए क्वेश्चंस. मोर ओवर आजकल के एग्जाम्स में, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में, इनके बेसिस पे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कैसे 1 मार्क के क्वेश्चन क्या होते हैं, तो उसके डिस्कशन के लिए मैं 1-2 रिजल्ट्स और करा देता हूं, फिर मैं उस पर डिस्कशन करता हूं कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग, सिंगुलर मैट्रिक्स. Now, what do you mean by singular matrix? Matrix, a square matrix A is said to be singular if its determinant equals to 0. Similarly, we have non-singular matrix. Non-singular matrix. A square matrix is said to be non-singular if its determinant not equal to 0. If its determinant not equal to 0. Means what? What we have said, matrix is singular if determinant comes out to be 0. Matrix is non-singular if determinant not comes out to be 0. Right? So, simple question क्या रहेंगे कि आपसे मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, you need to check whether it is singular or non-singular. So what you need to do, calculate its determinant. Determinant calculate करो, on the basis that you will declare whether the given matrix is a singular matrix or non-singular matrix. जैसे यही था, ये मैट्रिक्स दे दिया गया है, चेक करना आपने सिंगुलर है कि नहीं है. You know that determinant तो निकालना आता है, we have discussed, right? तो बस आपने determinant निकालना है, उसके बेसिस पे ये जज करके बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. Then we have next theorem. Now, according to this theorem, if A and B are non-singular matrices of same order, then AB and BA would also be non-singular matrices. Then AB and BA
would also be non-singular matrices. Means what? What I have declared, अगर A और B दो matrices non-singular हैं तो AB मैट्रिक्स जो आएगा, BA मैट्रिक्स जो आएगा, वो भी क्या होंगे? Non-singular matrices होंगे. With the condition A and B are the scale matrices of same order. चलिए इन सारों के एक बार थोड़ा समझाता हूं मैं मीनिंग वाइज. Let's suppose I'm taking a scale matrix A 2 3 4 1. इसको चेक करना है मुझे कि ये सिंगुलर है कि नहीं है. तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं. 2 minus 12 minus 10, right? Now I'm going to take B matrix 3 5 4 1. डिटरमिनेंट B कैलकुलेट करता हूं. 3 minus 20 कितना आया? minus 17. It means both A and B are non-singular matrices, right? Why it is so? Because non-singular matrices कौन से होते हैं? इनका determinant not equal to 0 आता है. Both have the determinant not equal to 0. Now I'm going to calculate A into B. A into B. 2 3 4 1. Then it is 3 5 4 1. चलिए कैलकुलेट करते हैं. तो रो into column. First into first, second into second, so it becomes 6 plus 12. Next would be first and second. 10 plus 3, 13. Now second row, 12 plus 4, 16. 20 plus 1, 21. It is actually 18, 13, 16, 21. Now हमने इस तरह में क्या बोला था? हमने ये कहा था अगर A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे of same order, then AB and BA would also be non-singular matrices of the same order, right? अब एक जरा चेक करके देख लेते हैं. तो क्या AB सिंगुलर है? AB मैट्रिक्स जो बन के आया है क्या वो सिंगुलर है? कैसे क्रॉस चेक करना है? अगेन इनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखिए. AB मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा. इट वुड बी व्हाट? 18 into 21 minus 16 into 13. The product of these two are not equal, therefore the determinant would not be equal to 0. Hence AB would be non-singular matrix. Same manner you can cross check by yourself for BA also. सेम क्या करना है? B into A कैलकुलेट करना है और वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि इट वुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज उसका भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा. आई होप नाउ ये सारे क्लियर हो गए रिजल्ट्स. सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0. देन वी हैव गिवन अ थ्योरम A और B नॉन सिंगुलर, तो AB और B का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. ओके, अब आगे चलते हैं इसमें. Then we have another theorem. That theorem says that if A and B are square matrices of order n cross n, A and B are square matrices of same order, let's suppose, of same order, then determinant of A into B would be equals to determinant of A into determinant of B. If A and B are square matrices of same order, then determinant of A into B would be equal to what? Determinant of A into determinant of B, right? So this is another result that you have to remember. ओके, मीनिंग समझ में आ गया होगा. दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट इक्वल टू व्हाट? पहले का डिटरमिनेंट इनटू दूसरे का डिटरमिनेंट. क्रॉस चेक करने का ये रहा हमारे पास. हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट. ए का डिटरमिनेंट कितना था? -10. बी का डिटरमिनेंट कितना था? -17. प्रोडक्ट कितना आएगा? क्वाइट ऑब्वियस 170. AB का डिटरमिनेंट ये क्रॉस चेक कर लेते हैं. AB का डिटरमिनेंट है 18 into 21, 16 into 13. ओके, 18 into 21 378, 16 into 13 208. The difference comes out to be 170. So 170 equal to 170. Now you can cross check the result.
right? So I hope you're clear about the theorem also. This result, that is, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट का डिटर्मिनेंट इनटू सेकंड का डिटर्मिनेंट. अब देखिए, इसके बेसिस पे हम कुछ और भी रिजल्ट बना सकते हैं. जरा इसके बारे में सोच के देखिए. हमने फर्स्ट थ्योरम कही थी, A into adjoint A equals to what, determinant A into I. Let's suppose A is a scalar matrix of order n cross n. A is a scalar matrix of order n cross n. Now, if I need to calculate A into adjoint A determinant, A into adjoint A determinant A into I, यानी कि ये मैट्रिक्स होगा ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर होगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स बनेगा. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट A into I का डिटर्मिनेंट. वी हैव कंसीडर दैट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. अब सोच के देखिए, पहले इस मैट्रिक्स के बारे में सोच के देखिए. तो A का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो I का ऑर्डर भी n क्रॉस n हुआ. सपोज अभी के लिए n हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं 3. तो डिटर्मिनेंट A इंटू I जो बन के आएगा उसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट A इंटू दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो ये रिजल्ट क्या बन के आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट. ये था डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. अब आप ये सोच के देखिए कि आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो डिटर्मिनेंट A इंटू I का यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A, इसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, हमें ये मैथड्स आते हैं. तो यस, व्हाट वुड बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स वुड बी व्हाट, डिटर्मिनेंट A का क्यूब. अब जरा डिटर्मिनेंट A इंटू I का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया मैंने, यानी कि इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया. देयरफॉर आई गेट द रिजल्ट. द रिजल्ट सेज दैट A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, A इंटू एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट A पावर n. Why n? Because T was order, so it comes out to be n. Now, अब जरा इसमें चेक करिए, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं. हमने ये थ्योरम डिक्लेयर की थी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. अब सोच के देखिए, यहां पे पहले लेफ्ट साइड पे सोचिए, एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट A एक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैन रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A की पावर n. तो डिटर्मिनेंट A अगर वहां पे शिफ्ट हो जाए, so what would be the next result? Next result comes out to be adjoint A determinant equals to determinant A power n minus 1. Adjoint A determinant equals to determinant A power n minus 1. So from here we get two results. First result is this, determinant of A into adjoint of A equals to what, डिटर्मिनेंट A पावर n. नेक्स्ट रिजल्ट इज दिस, adjoint A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट A पावर n, राइट. सो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ एक्सरसाइज 4.5. इन दिस एक्सरसाइज हमने क्या किया, adjoint A के बारे में डिस्कस किया, उनके थ्योरम्स, और थ्योरम से भी हमने कुछ रिजल्ट्स बनाए. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज रिजल्ट्स and practice such type of questions, right? That's it for today.